Let's begin this session with one of the important topics from Unit 6 we have is group dynamics. In last session students मैंने आपके साथ बहुत deeply discuss किया था the three traits that must be there in a human being जब उनको select किया जाता है तो वो चीज़ें कैसे affect करती हैं personality, perception and attitude. In today's session of Unit 6 UGC NET subject Commerce paper 2 we are going to discuss about group dynamics क्या होता है. एक मैनेजमेंट के अंदर ये टर्म कहाँ से उत्पन्न हुई, इस टर्म के बारे में आपको कितना पता होना चाहिए एंड यूजीसी नेट एग्जाम में ग्रुप डायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है. सो लेट्स डिस्कस. ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है? The people who are working in a group is simple. हम यही बोलते हैं मैनेजमेंट के अंदर, like you can see in this picture, all these people are working for a given task or something जो टारगेट है उनके लिए मिलकर ये काम कर रहे हैं. They are the employees in a company. So it deals with attitudes and behavioral patterns of a group. एक ग्रुप के अंदर जो लोगों का एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, that comprises a group dynamics. And it is concerned with how the groups are formed. Groups कैसे form होते हैं? It's not or, it's are. Formed, what is their structure? कैसे build up हुए? And which processes are followed in their functioning? जब वो एक टास्क को फुलफिल करेंगे तो वो कौन से प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ये सब एक ग्रुप डायनेमिक्स में इन्वॉल्व होता है. व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर, हाउ द ग्रुप इज फॉर्म्ड, what are their attitudes and behavior, what the structure is kind of it is, and what is the process followed in that group. All right, this all makes a group dynamics. Now let's see what is the process of group dynamics. group dynamics का क्या process होता है, कैसे शुरू होता है, लास्ट स्टेज क्या होती है ग्रुप डायनेमिक्स एक ग्रुप बिल्ड होने की. सो द वेरी फर्स्ट वी हैव इज फॉर्मिंग. Forming means that members जो इस stage पर, the very first stage you can say, either engage in busy type of activity or show apathy. Right? एक task होता है या तो उसको कर रहे होते हैं या they show apathy to each other. So very first stage is the forming of the group dynamics. Next we have is storming. Storming का मतलब क्या होता है? Storm आपने ये कंसेप्ट या ये जो वर्ड है कहीं सुना होगा. स्टॉर्म मीन्स यहाँ पर मेंबर्स जो होते हैं दे सीक आउट फेमिलियर और सिमिलर इंडिविजुअल्स. एक ग्रुप तभी बनता है ना जिसमें सारे मेंबर एक दूसरे से खुश हो, जो एक दूसरे को समझते हो, दे अंडरस्टैंड ईच अदर. तो यहाँ पर जो एक मेंबर्स होते हैं व्हेन दे स्टार्ट फॉर्मिंग दे ट्राई टू सर्च आउट द पीपल ऑफ सेम बिहेवियर जिनके साथ वो फेमिलियर हो सके. दे गेट अ फीलिंग ऑफ बॉन्डिंग विद देम. Right? So members seek out familiar or similar individuals here and begin a deeper sharing of self. अपने आप को पूरा शेयर करते हैं. They share each other's feeling with them. Okay? Then the third we have is norming. After storming we have norming. Norming process में क्या किया जाता है? It is marked by a more serious concern about task performance. यहाँ पर अब like sharing of feeling, that is some kind of informal way जो हमने ये second process पढ़ा. Third process में it becomes more professional. All the group members try to focus on completing or achieving their task. वो serious हो जाते हैं अपने काम को लेकर and efforts are made to establish various norms, rules for task performance कि हमें task को कैसे complete करना है, फिर वो उसके बारे में discuss करना शुरू करते हैं. क्योंकि एक दूसरे को जानने के बाद, समझने के बाद इट्स ईजी इन द ग्रुप टू डिस्कस हाउ यू अचीव दैट टास्क और उस टास्क को कैसे कंप्लीट किया जाएगा. ईच वन शेयर देयर व्यूज. देन जब आपने नॉर्मिंग में सारे रूल्स डिस्कस किए, एक तरीके का प्लान पूरा डिस्कस किया, द फोर्थ टास्क वी हैव इज परफॉर्मिंग. परफॉर्म करना. आप अब जो वो टास्क है उसको एक्चुअली में अकम्प्लिश करते हो. सो इट इज़ फुली अ फंक्शनल ग्रुप. यहाँ पर अब सारे मेंबर अच्छे से फंक्शन करेंगे वेयर मेंबर सी देमसेल्व्स एज अ ग्रुप एंड दे गेट इन्वॉल्व इन कंप्लीटली इन दैट टास्क इन अचीविंग द रिजल्ट्स ऑफ दैट टास्क. आफ्टर देन वी हैव द this is the fifth one, it's adjourning. Okay, adjourning means although
हो गया टास्क, आप कहोगे मैम टास्क था, परफॉर्म कर दिया, अब तो यहीं पर भी प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए, नहीं। दिस फिफ्थ stage, fifth you can say process, is quite available, or you can see this fifth step in some groups. कैसे? This is temporary, in case of temporary groups, जो कि किसी टास्क के लिए ग्रुप बना दिया जाता है। एक मैनेजमेंट के अंदर, एक मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट है, उन्होंने 5-6 लोगों को बुलाया और उनको एक टास्क दिया कि आपको ये काम करना है। सपोज कीजिए, लेट्स डू अ टास्क, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ने अभी जो काम चल रहा है वो इट्स गोइंग ऑन, बट इन द बिटवीन उनको लगा कि हमें अपनी अब इसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोस्पेक्टस निकालना है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ 2-3 मंथ्स प्रोसेस, जिसमें सारे लोग इकट्ठे होंगे, कंपनी की पूरी अचीवमेंट्स को देखेंगे और उसमें अदर मेंबर्स को इनवाइट करने के लिए बुलाएंगे। तो प्रोस्पेक्टस के लिए दे कॉल्ड 5 to 6 एम्प्लॉइज, एंड दे मैनेजमेंट जो है, टॉप मैनेजमेंट, उनको एक टास्क असाइन की उन्होंने कि आपको कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनाना है। देन दिस इज अ टेम्पररी ग्रुप, जो एक टास्क के लिए बनाया गया है। जैसे ही टास्क अचीव होगी, ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, वो ग्रुप जो मेंबर्स होंगे दे विल गो बैक टू देयर ओरिजिनल ग्रुप, राइट। सो इट इज़ अ केस ऑफ टेम्पररी ग्रुप, लाइक कोई प्रोजेक्ट टीम दी गई है, कोई प्रोजेक्ट दिया गया है उन्हें, कोई टास्क करवानी है, और एनी अदर सच ग्रुप विच हैव अ लिमिटेड टास्क एट हैंड। ओके, सपोज कीजिए कि एक पार्टी करनी है मेंबर्स के लिए, फेयरवेल पार्टी अरेंज करनी है, तो कुछ मेंबर्स को वो एक टाइम के लिए काम दे दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही वो काम परफॉर्म हुआ या काम पूरा हो गया, वो टास्क अचीव होगी, एक्टिविटी हो गई, दिस ग्रुप जो होता है बाइफरकेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, सो इट्स अ फिफ्थ स्टेज जो कभी कभी आपको देखने को मिलती है, एंड दिस इज एडजर्निंग। एडजर्निंग मीन्स नाउ इट इज ओवर, मॉर्निंग जिसको हम कहेंगे, राइट। देन ग्रुप डायनेमिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। ऑल राइट, ये भी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। सो टाइप्स ऑफ ग्रुप्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। There are basically two kinds of group. The one is formal group and the other is informal group. Formal और informal मिलता है। Formal का name आपको पता है, in which you have certain formalities, professional outlook होता है। All see, वो जो group होता है उसमें सारे they share a professional relationship. But informal, it's kind of a above than informal. They all share a good relation with each other. They have a friendly bonding with each other. Familiar सा nature हो जाता है। दे ऑल फील लाइक अ फैमिली इन फॉर्मल ग्रुप में, राइट। सो फॉर्मल ग्रुप आपको 3 तरीके के दिखेंगे। वी हैव, दिस इज 3 सब टाइप। वन इज कमांड ग्रुप। कमांड ग्रुप मीन्स ऐसा ग्रुप जिसमें एक दूसरे को कमांड दी जाती है और उनको एक्शन करना होता है। नो अदर शेयरिंग ऑफ थॉट्स और व्यूज above that, राइट। कमांड ग्रुप में एक दूसरे को कमांड दी जाती है और काम पूरा करा जाता है, एक इनफॉर्मल है। देन इज टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप मीन्स कि एक दूसरे को टास्क दी गई है या आपके ग्रुप को टास्क दी गई है और आपको वो टास्क कंप्लीट करनी है, और उसके बाद आपका ग्रुप ओवर हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको एक बताया, एग्जाम्पल दिया, जैसे कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनाना है या कंपनी के मेंबर्स को फेयरवेल पार्टी देनी है, तो उसके लिए ग्रुप बना दिया गया है, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल ग्रुप। दे विल ऑर्गेनाइज, एंड देन द जैसी फेयरवेल पार्टी हुई, ग्रुप ओवर। द थर्ड इज फंक्शनल ग्रुप, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाया गया है, राइट। उस फंक्शन के अचीव होने पर उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, एंड देन ग्रुप विल गेट डिस्पर्स। 3 ग्रुप समझ में आए। देन वी ऑल्सो हैव 3 सब ग्रुप्स इन इनफॉर्मल वे। इनफॉर्मल, फर्स्ट इज इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप मीन्स द एम्प्लॉइज विच हैव द सिमिलर इंटरेस्ट। ओके, जिनका इंटरेस्ट बिल्कुल सेम मिलेगा। तो आप इस ग्रुप में देखोगे कि सबका एक ही मोटिव है, इसलिए उन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया। फॉर एग्जाम्पल, जो कंपनी ने है वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस ज़्यादा बढ़ा दिए। ओके, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस उन्होंने बढ़ा दिए, तो जो एम्प्लॉयज़ कंपनी के ही व्हीकल से आ रहे हैं, तो उनको ज़्यादा ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने ग्रुप बना लिया। इट मीन्स ऑल एम्प्लॉयज़ नाउ हैव अ सेम इंटरेस्ट कि उनको अपने ट्रांसपोर्ट चार्जेस कम करवाने। The second is friendship group. Friendship group, this group is not formed for any task, any objective, any interest. इसमें बस क्या है कि all the employees or members have a friendship bond with each other. आपस में बैठते, जैसे लंच के टाइम में सब इकट्ठे हुए और फ्रेंडशिप की वजह से ग्रुप बना। द थर्ड वी हैव इज अ रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप मीन्स एक दूसरे को रेफर कर करके एक ग्रुप बन गया, और उसको हम बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप। So these 6 kind of groups you get to
see in any kind of organization, and group dynamics play a very important role in achieving a task. तो आपको मैनेजमेंट का पार्ट होने के लिए समझना पड़ेगा कि ग्रुप्स का क्या रोल होता है. All right, so till then keep watching, have a nice day and don't forget to subscribe. Thank you.